Hey guys, welcome back to Shakir Khan Fitness. So currently I am in Alibag along with my colleague Zubair Ghachi, and we are here with a corporate team of like 12 people whom we are going to train for SUP basic introduction, and then we are going to train them for some first aid and CPR basics also. So here I'll introduce you to the team of Andromeda. So here you can see these are the people that have come along with us. Actually we have come along with them. So they have a story to tell, because of which they asked us to join us as their safety and to look after them when they are coming for this Alibag trip. So moving on to the team, they will discuss their story, they will share their story. Aman. Over to Aman. हेलो हम लास्ट ईयर जैसे कोलाड में गए थे, तो हमारे साथ एक रिवर राफ्टिंग के समय पे जैसे वाटर स्पोर्ट्स था, तो एक इंसिडेंट हो गया था कि हमने स्टिल वाटर के पहले ही पानी में कूद गए थे हम, और ड्यू टू वी आर मतलब हमको स्विमिंग नहीं आती थी, तो हम एकदम डूबने की कगार पे थे। जैसे सागर था मेरे साथ और हम एक दूसरे को पानी में खींच रहे थे। हमें पता नहीं था उस समय क्या करना है, कैसे करना है, एंड हम बहुत डर गए थे। और साथ ही साथ हमारे बॉस जैसे मिस्टर शाह आलम, ये भी बहुत दूर से देखकर घबरा चुके थे, और फिर हमने ये डिसाइड किया, आगे बताएंगे आपको। So guys, thanks Zubair and thanks Shakir for first coming and accompanying us here at our Alibag trip. So we had a bad year last year when we had gone Kolad. So my team was really in problem when we were river rafting. So this year when I wanted to take them for outing, my first thing in my mind came of like due to Corona, if one major event, I thought safety should be one along with it. So I hired Zubair and Shakir to come along and help us and guide us, my team, when we are going for any water sports activity. So I had seen their videos on Instagram and Facebook, and I was really excited to meet them. So all of a sudden, I tried to contact Zubair and I went to Novotel and I saw there, for a lot of safety at Zoo Beach which they have created. So I thought, they are the right people to accompany me and my team and help me guide. So I had approached Zubair regarding that, and and they welcome us with their open hands when here they are with us and they are going to guide us. Thank you. So basically I'm going to give you a basic introduction to the safety and CPR that we do after any incident happens in the beach or maybe on the dry land also. A lot of time what happens कि आप जब कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, सडनली किसी को कुछ इंजरी हो गई या कोई हार्ट अटैक आ गया एंड दे गॉट अनकॉन्शियस. सो बेसिकली this you must have seen in many movies, people doing mouth to mouth resuscitation and then do the pumping and all. So what exactly that is all about and what are the steps that I am going to show you step by step. सबसे पहले तो आपको इसका एक बेसिक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर है जिसको हम लोग बोलते हैं DRABC. सो DRABC का फुल फॉर्म मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ. D स्टैंड फॉर डेंजर. तो सबसे पहले आपने विक्टिम को जो ड्राउन हो रहा था या जो अनकॉन्शियस है, आपके ऑफिस में या कहीं पे भी कोई भी जगह पे मॉल में कोई बंदा आपने देखा जो सडनली अनकॉन्शियस हो गया, किसी को स्ट्रोक आ गया या किसी भी रीज़न से, सबसे पहले आपको उसको उस जगह से बाहर निकालना है, डेंजर से बाहर निकालना है, फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन वेयर ही गॉट अटैक, वेयर ही वॉज ड्राउनिंग. रिमूव द पर्सन आउट फ्रॉम डेंजर. दैट इज द D. नेक्स्ट कम्स R. R का मतलब होता है रिस्पॉन्स. तो आई हैव टू चेक हिज रिस्पॉन्स. हेलो, हाउ आर यू, कैन यू हियर मी, कैन यू लिसन टू मी, कैन यू फील मी, वट एवर यू वॉन्ट. यू कैन गिव 2 स्लैप्स ऑल्सो, नॉट वेरी जोर से, छोटा छोटा स्लैप. मतलब इफ ही इज कॉन्शियस ही इज डेफिनेटली गोइंग टू रिस्पॉन्स थ्रू हिज एक्शंस, मे बी थ्रू हिज वर्ड्स, वट एवर. बट इफ ही इज नॉट रिस्पॉन्सिंग देन कम्स द नेक्स्ट अल्फाबेट A. Okay, so that means he is unconscious. Then I'm going to first check his pulse and all. अगर उसका पल्स वर्क कर रहा है बट उसका ब्रीदिंग नहीं है, दैट मीन्स हिज हार्ट इज स्टिल वर्किंग बट समवेयर समथिंग इज चोकिंग. दैट्स A comes for airway. ओके, उसका माउथ खोला, एयरवे क्लियर किया, जो भी है. एयरवे क्लियर करने के बाद में बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो भी मटेरियल अटका हुआ होता है, मे बी इट्स हिज ओन स्पिरिट और कफ व्हाटएवर, वो अगर निकल जाता है तो सडनली आदमी कफ करके अचानक से ही कम्स टू अलाइव. लाइक सडनली आपने देखा होगा रिस्पॉन्स आ जाता है. अगर रिस्पॉन्स नहीं आया उसके बाद में आता है ब्रेथ टू एमरजेंसी. BRAB आ गया. B स्टैंड फॉर ब्रीदिंग. सबसे पहले 2 एमरजेंसी ब्रेथ दूंगा मैं. C CPR. देन कम्स द CPR. CPR इज द कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन. उसमें क्या करूंगा मैं, अपना हाथ ऐसे रखूंगा और उसके चेस्ट के थोड़ा सा नीचे यहाँ पर मिड पॉइंट पे जहाँ पर रिफ खत्म होता है, रिफ का केज जो खत्म होता है,
यहाँ पर हाथ रख के आई विल स्टार्ट पंपिंग. आई एम नॉट गोइंग टू पंप एक्चुअली बिकॉज अगर लाइव पर्सन के मैं पंप करूँगा तो उसका हार्ट रुक भी सकता है. तो उसके ऊपर ऐसे हाथ रख के मैं पंपिंग दूंगा फॉर 30 कंप्रेशन. 30 कंप्रेशन आई विल गिव. और 30 कंप्रेशन में कैसे करूँगा, आई विल काउंट फ्रॉम माई माउथ ऑल्सो सो दैट आई डोंट फॉरगेट. अनदर थिंग इज वो कंप्रेशन पूरे होने चाहिए, इसलिए मैं ऐसे काउंट करूँगा 1 2 3. ऐसे नहीं करना 1 2 3 4, ये वाला भी नहीं करना है. प्रॉपर 1 2 3 4 5 30 कंप्रेशन. अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आए, आई विल कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल द टाइम आई एम गेटिंग द एम्बुलेंस. तो दिस इज द बेसिक DRABC जो हमने आपको इंट्रोड्यूस किया है अभी. ये हर एक को पता होना चाहिए, नॉट जस्ट इन एनी कंपनीज, नॉट जस्ट इन एनी corporate sector, but in every sector everybody should know this basic because okay Aman, thank you so much Aman. So if anybody and everybody knows this basics, they can help someone to save their life or at least to sustain till the time the ambulance comes, till the time they get some help. जुबैर सर है, आप हाथ जरा वेव करिए प्लीज़. और ये शाकिर सर यहाँ पर अपनी SUP लिए और अब हम ट्रेनिंग के लिए जा रहे हैं. सो प्लीज़ जॉइन अस एंड कंटिन्यू टू वॉच. ओके, SUP का फुल फॉर्म किसी को आइडिया? स्टैंड अप पैडल बोर्ड. ठीक है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर ये है कि इक्विपमेंट हैंडलिंग. आपको बोर्ड को हमेशा से थोड़ा ध्यान दे के हैंडल करना है. जाने की पोजीशन भी हम सीखेंगे क्या है और इस पर बैठते कैसे और उतरते कैसे. ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप जब भी SUP पे बैठो तो आपको दोनों पैर एक साथ जंप करके बैठना है. नॉट लाइक अ हॉर्स राइडिंग, जैसे हम हॉर्स में कैसे बैठते वैसा नहीं, बाइक पे बैठते वैसा भी नहीं. तो आप अगर ये लेवल के पानी में हो, SUP को पकड़ना है आपको इस तरीके से. ठीक है, 1 2 3 जंप एंड सिट. ये जो पोजीशन मार के बक्कल का, इसके बराबर नी लेवल पे यहाँ पर बैठना है. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप ये पैडल पकड़ो तो मेक श्योर कि ये पैडल सीधा हो. अभी इसमें सीधा या उल्टा कोई बताएगा क्या है? उल्टा है. ये सीधा पैडल है, राइट? यस. कयाक का पैडल ऐसा होता है. और जब भी आप पैडलिंग की पोजीशन लोगे बैठ कर, ये हैंडल आपके क्लोज रहना चाहिए 90 डिग्रीज पे. मेरा एल्बो दिख रहा है 90 डिग्री पे. पैडल पुश भी आए, पैडल पुश भी आए. 5 पैडल राइट, 5 पैडल लेफ्ट. चल, आपको खड़े कैसे होना है? पोजीशन पैडल का इस तरीके से, नी पोजीशन एकदम राइट, सेंटर ऑफ द बकल. 1 2 3 जंप टुगेदर एंड देन स्ट्रेट. और सामने देख के आपको पैडल करना है. बट ड्यूरिंग द पैडल तुम इसे आपकी हाइट के मुताबिक खोल दोगे अपने पाम से थोड़ा सा नीचे. बट फिलहाल हम लेसन 1 में पैडल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ रिटर्निंग बैलेंस सीखेंगे. बोर्ड के ऊपर बैलेंस और स्टेबल कैसे रहना है. ठीक है, बड़े मैं एक आपको करके बताऊंगा हमें कैसे अंदर जाना है विदाउट पैडल. राइट, ये पोजीशन स्लोली 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 इन. ओके, फिर हम रिटर्न ट्राई करेंगे.